H. The CPU refers to an index file to identify which character the key press represents. Letter H has been pressed and no makes contact with the bottom conductive layer. Uses of keyboards: input of data into application software, for example text into Word, processors number into spreadsheets, and so on. Typing in commands to the computer, for example print screen, control plus P to print out, and so on. Advantages of keyboards: can be difficult to use if the user has limited arm wrist use. So नहीं नहीं तो advantages लिखना है. Fast entry of text of new text into document, well-known method, easy to use for most people, easier to verify checks as data is entered, can immediately compare the source document with typed data on the screen. Disadvantages: can difficult to use the if the user has limited arm wrist use, slow method when compared to direct data entry, for example optical mark recognition, uh, fairly large device that uses up valuable text space. जी सर एक सेकंड होल्ड करना, रीड कर लिया मैं. एक सेकंड होल्ड करना. हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? हाँ अब्दुल्ला, क्या पूछ रहे थे? सर मैंने बोला मेरा हो गया, मैंने रीड कर लिया. ठीक है, अब ये डिसएडवांटेज मैंने पढ़ लिया बोला आपने? मैंने रीड कर लिया. ठीक है, डिसएडवांटेज हो गए. डिसएडवांटेज भी. अब ये जी. न्यूमेरिक कीपैड. Numeric keypads. A numeric keypad is used to enter numbers only, although some have a function key to allow alphabetic characters to be input. Use of numeric keypads: automatic teller machine ATMs, where the customer can key in their PIN, amount of money, etc. Mobile phones to allow phone numbers, etc. to be keyed in point of scale terminals POS in case the barcode reader fails to read the barcode, the number has to be keyed manually by the operator. Chip and PIN devices, when paying by credit card, debit card, key PIN amount. Fast entry of numeric data into spreadsheets, faster than standard keyboards when entering numeric data, because they are small devices. For example, mobile phones, they are very easy to carry around. Disadvantages of numeric keypads: sometimes have small keys which can make input more difficult. Sometimes the order of numbers on the keypad is not intuitive. ठीक है, जी सर. समझ आ गया ना? अब पॉइंटिंग डिवाइस है. जी सर, ये एटीएम के हाँ, एटीएम के एटीएम अंदर भी होता है ना? कीपैड होता है ना एटीएम में. जी. कीपैड तो हर प्लेस पे होता है. जैसे तुम वो जाते हो वहाँ पे क्लियरेंस के लिए. अब ये माउस देख लो. हाँ. हाँ जी. Pointing devices, mouse. The modern example of pointing devices. The user controls the position of a pointer on the screen by moving the mouse around. There are usually two buttons which have different functions. The left button is used to select items by double clicking, while the right button brings drop downs. Many also have a scroll button which spreads a document. The optical mouse, where a movement is detected by reflected rather than the position of a moving ball. A cordless or wireless mouse, which
transmits signal to a USB wireless receiver plugged into the computer are in use on modern computers. Of optical mouse is it has on no moving parts, and it also does not pick up any dirt. This makes it more robust and improves its performance because the older type of mouse can skid on certain surfaces, reducing the control of motor. Uses of mouse. Almost anything, depending on the software, but includes opening, closing, and memorizing software, grouping, moving, and editing files, image editing, for example, controlling the size and position of a drawing, controlling paste in a document, controlling the position of a pointer on the screen to allow selection from a menu, selecting an icon for scrolling up and down, left and right. Advantages of a mouse. Faster method of choosing an option rather than using a keyboard. Very quick way of navigating through applications and internet. Does not need a large desk area compared to the keyboard. Compared to keyboard. ठीक है, अब ये डिसएडवांटेज देख लो। हाँ, ये डिसएडवांटेज देख लो। जी सर, समझ गया। ओके, ये देख लो। जी सर, टच पैड। हाँ, मैंने कहा डिसएडवांटेज देख लो ना। अच्छा, disadvantages can be more difficult for people with a restricted hand, wrist movement than using a keyboard for data entry. Easy to damage, and the older type of mouse quickly becomes clogged up with dirt. Difficult to use if no flat surface readily available, for example, on an aeroplane. ठीक है, समझ में आ गया। जी सर, समझ गया। अब वो फाइल ओपन होगी, मैं तुम्हें शो करता हूँ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर के एंड में दिए हुए ना। हाँ वो हाँ, हाँ, नहीं मैं पास पेपर की बात करता, एग्जाम बेस्ड चैप्टर वो उनका तो कर लिया था। वो भी तो अभी मेरे साथ नहीं किया ना। अब वो भी करेंगे, कवर तो करते देखो। नहीं सर, आपके सीक्वेंस साथ मैंने एग्जाम बेस्ड कर लिया था। ने कब किया था? नहीं किया था ना। इधर आ बेटा अंदर। अच्छा हाँ, इसका आंसर तो अच्छा, ये नहीं, हाँ ये नहीं किया मैंने। ये नहीं किया ना ये नहीं मैंने। किया। There are number of different types of computer. Either on the type of computer that best fits the following description. A computer that is difficult to move and has a separate monitor and a keyboard. Separate monitor and a keyboard. Sir, desktop मतलब PC. डेस्कटॉप कंप्यूटर विद सेपरेट मॉनिटर की, ठीक है। Yes. अब ये देखो। A portable computer that includes a physical keyboard. Sir, वो लैपटॉप। ठीक है। जी सर। Thin portable computer that has a touch screen and a battery in a single unit, not normally used to make phone calls. Sir, वो tablet. ठीक है। A mobile phone that can be used as a computer. Sir, smartphone. ठीक है। Tick, okay. Tick करना. Instruction has to be typed as CLI. Application are represented by icon GUI. Options are chosen from a menu. GUI भी इसका भी है. Many instructions have to be memorized. CLI. ये थर्ड क्या है? यूआई सीएलआई। थर्ड कौन सा है? सर ये मेन्यू से वो GUI है। ठीक है, और ये चौथा? ये तो CLI। हमारी तैयारी सही है। जी सर, पास पेपर की तैयारी की थी सर, आसान। Most smartphones can carry out any function which until recently only a computer could perform. Example, why computer all typed are still needed. कंप्यूटर सर इसके अंदर मतलब ये 7 मार्क है ना, हाँ, तो 7 मार्क्स का आपको बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ ये परफॉर्म करता है।
कंप्यूटर को सर जैसे फाइल्स को मैनेज करना, फाइल्स को क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होती है, क्या बोलते हैं, डेटा, और इसकी स्पेस चाहिए होती है। तो सर और फाइल्स के लिए सर हमें इसके लिए जैसे प्रेजेंटेशन के लिए और मल्टीपल चीज़, और इजी होता है सर टाइप करने के लिए कीबोर्ड के साथ, स्पेस ज़्यादा होती है। डिफिकल्ट नहीं होता। लार्जेस्ट स्क्रीन होती है सर, ठीक है। लार्जेस्ट स्क्रीन भी होती है। जी हम्म। सर, इसका 3 मैंने बोल दिए। और चौथा पॉइंट है सर, इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल। और सर पोर्टेबल नहीं, इसके पोर्टेबल अंदर क्या नहीं, होता है, बैटरी लाइफ ज़्यादा, इसकी पोर्टेबल नहीं बताओगे? बैटरी लाइफ ज़्यादा होती पीसी पोर्टेबल नहीं है ना, इसलिए पोर्टेबल नहीं बताओगे। है। अच्छा सर, ये बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है इसकी, ये भी ज़्यादा कैसे, हाँ ये भी बैटरी होती है। कह सकते हो। वो- सर मैंने बोल दिया था अच्छा। और सर इट इवन इंक्लूड्स अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन बी इजीली स्क्रॉल्ड, यू कैन चूज ऑप्शंस, मेन्यू भी होता है इसके साथ। ठीक है। और भी बड़ी चीज़ें हैं सर जी, मैंने आपको 107 पॉइंट बता दिए इसके। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला है जी सुपीरियर, सर, आपने पहला पॉइंट है कंप्यूटर ऑफ ऑल टाइप। ये ये टेक्निकल पॉइंट बताओगे, सुपीरियर प्रोसेसर जो कि मोबाइल में नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी आपने बताया था, जी सर। एंड वर्साटिलिटी कंपेयर टू स्मार्टफोन, यानी वेरियस टास्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं जो कि मोबाइल में नहीं कर सकते। सही है, यानी वर्ड पे आप इजीली काम नहीं कर सकते ना, एक्सेल पे इजीली काम नहीं कर सकते मोबाइल फोन में, ऐसे ही। जी सर, सही ये कह सही। रहा है वाइल स्मार्टफोन है बिकम मोर कैपेबल, दे आर लिमिटेड बाय देयर स्मॉलर फॉर्म फैक्टर, वो साइज का इशू है, विच हिंडर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड प्रोफेशनल। इससे पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, 7 मार्क्स हैं, खाली पॉइंट नहीं लिखोगे। साइज इज लेस, ठीक है, बताओगे साइज लेस है तो क्या हुआ, या मोर साइज को कैसे जजमेंट दोगे, पूरी पूरा सपोर्टेड होना चाहिए। समझ आइए आंसर, ठीक है, कंपेयर करते हुए आपने जी अपने रीजन को सपोर्ट करना है। ये मोबाइल पे कॉम्प्लेक्स टास्क और प्रोफेशनल लर्निंग का प्रभाव नहीं हो सकती। कंप्यूटर एक्सेल इन हैंडलिंग रिसोर्स इंटेंसिव एक्टिविटीज लाइक वीडियो एडिटिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो मोबाइल पे नहीं हो सकती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके लिए आपको पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए। दे प्रोवाइड अ मोर एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट विद लार्जर स्क्रीन, ठीक है, विद लार्जर स्क्रीन, फुल साइज कीबोर्ड एंड प्री साइज इनपुट डिवाइस, ये भी आपने बताया था, लेकिन आपको प्रॉपर वर्ड यूज करने हैं आंसर गेट करने के लिए। खाली पॉइंट नहीं यस। हाँ पॉइंट नहीं बताने, उसको एक्सप्लेन भी करना है। एडिशनली कंप्यूटर सर्व एज द बैकबोन फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको कंट्रोल हम कंप्यूटर से कर रहे हैं, मोबाइल से नहीं कर रहे हैं। सपोर्टिंग ऑनलाइन सर्विसेज, अभी जैसे आप गूगल ड्राइव मिल रही है, अमेजॉन ड्राइव है, आई ड्राइव है, ये सब डेटा कहाँ स्टोर है, किसी कंप्यूटर पे स्टोर है ना। डेटा हम्म। सेंटर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये काम मोबाइल पे नहीं हो सकता। सही है, देयर पावर जी एंड अडॉप्टेबिलिटी मेक देम डिस्पेंसिबल। मोबाइल में रैम अपग्रेड नहीं हो सकती है ना, मोबाइल जी में रैम सर। अपग्रेड होती है। जी सर। मुझे बताओ, रैम में मोबाइल में रैम अपग्रेड होती है? नहीं सर, नहीं होती है, नहीं होती लिमिटेड ना, होती है। वो हम इसीलिए फिर उसका यूज हाँ। बेकार हो जाता है ना, हाई एप्लीकेशन को वो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो जी आप सर, फिर नया लेना पड़ता है। नया लेना पड़ता है। नया लेना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसिव चीज पड़ जाता है सर। तो ये चीज लैपटॉप देखो ना, तुम लोगों को लैपटॉप 5 साल से यूज कर रहे हैं, 10 साल, जब तक फंक्शनल है, पीसी भी यूज हो रहा है, लैपटॉप भी यूज हो रहा है, क्यों? रैम अपग्रेड हो जाती है, प्रोसेसर अपग्रेड हो जाता है, कोई ना कोई हार्डवेयर जी अपग्रेड हो सर। जाता है, मोबाइल में ऑप्शन नहीं है। समझ आ गया? अब ये 8 यस मार्क्स का सर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ईयर एंड ये पढ़ लो, ये आपको 4 4 देने हैं। जी सर, ये मेरे पास पास पेपर के अंदर भी आया था। ये काफी तो मुझे मुझे बताओ, याद है, मैं इसके मैं पॉइंट हाँ पॉइंट लिखो या बताओ, या लिख लो, सर। स्क्रीन पे लिख नहीं, सकते हो। लिख 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 मैं हाँ लिख, पर वो फिर काफी हाँ, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चला अच्छा। चला बताते जाए। कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग डेवलपमेंट, इसके डिफरेंसेस। सर CLI, you have to that command must be typed
but ठीक है, rather than GUI, there are no commands have to be typed. Everything is in the menu or ठीक है, base. और सर दूसरा पॉइंट है क्या बोलते हैं बड़े पॉइंट से मुझे भूल गया सर GUI is user friendly while ठीक है। CLI is for mostly for developers or programmers. नहीं, नॉट यूजर फ्रेंडली CLI बिकॉज यू हैव टू टाइप कमांड, ऐसा ही बोलोगे ना। जी सर यस अच्छा, और और भी बड़े सर CLI command interference offers फ्लेक्सिबिलिटी, is CLI नहीं प्रोवाइड नहीं सर फ्लेक्सिबिलिटी। is much yes flexibility and is much more encrypted rather than GUI. नहीं, वो अलग चीज हो जाएगी। ये चीज बताओ, जनरल फीचर बता रहे हैं ना, ये तो बहुत स्पेसिफिक जी हो सर गया। CLI जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप कमांड अपनी मर्जी की टाइप कर सकते हो, GUI भी नहीं कर सकते। आप लिमिटेड है, जो कमांड आपको दी गई उन्हीं को यूज कर सकते हैं। समझ आया? जी और जी सर फोर्थ पॉइंट, 4 सर मुझे और बड़े पॉइंट्स है सर ग्राफिक इज इंटरफेरेंस द क्या बोलते एज everything is mentioned in the menus while CLI you have to memorize the formulas and the data ठीक है। चीजें मतलब मेमोराइज करनी पड़ती है लिखने के लिए चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, जी सर पढ़ो। जी सर command line interference CLI and graphical user interface GUI are two different ways to interact with computer ऑपरेटिंग operating सिस्टम, system क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ना, दोनों फीचर है। जी अब ये कंपैरिजन है। CLI relies on text-based commands entered through terminal requiring precise syntax knowledge प्रिसाइज सिंटेक्स नॉलेज, अरे अब फुल नॉलेज होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगी। क्लिकिंग नहीं है। जी सर it is efficient for experienced users and automating tasks through scripts स्क्रिप्ट आप अपना मर्जी का स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, GUI में नहीं कर सकते। वो आप लिमिटेड है, बाउंड है, जो कमांड आपको गिवन है। जी सर नॉइस यूजर के लिए बेकार है, टफ है। नॉइस वो होते हैं ना, जो जो प्रोफेशनल नहीं होते, एंड यूजर, लर्नर, नॉइस, विजुअल फीडबैक, जी सर जिनको चाहे बस आधे घंटे में सीख जाए ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेट होता है। अब इसके डिफरेंस शुरू हो गए। on the other hand GUI provides a GUI में ना ये सारी representative of चीजें, the system ये तीनों चीजें पॉइंट बताते हैं GUI, आइकन, विंडोज, मेन्यू एंड ग्राफिक। हम्म, और ये आगे इसका बेनिफिट दोगे। जी सर समझ गया ये क्या क्या लिखा हुआ? जी सर माउस क्लिक्स मैंने बोला था सर ये पॉइंट मेरा भी हम्म, था माउस क्लिक्स और मेकिंग इट इंटुइटिव एंड एक्सेसिबल जी सर हम्म। however GUI may be less efficient for repetitive tasks and consume more system resources मतलब डेटा ज्यादा कंज्यूम करता है हम्म। जी सर GUI ज्यादा करता है, ग्राफिक है ना। सिस्टम जी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर आप CLI प्रेफर करते हो। जितने भी बैंक्स में ऑपरेटिंग चल रहे हैं वो CLI को यूज करते हैं, लिनक्स, यूनिक्स। जी सर वो ऑफ कोर्स वो समझ आती क्यों यूज करते हैं मतलब सर वो स्क्रिप्ट की वजह से ना, ताकि आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकें। GUI जो है ना तो वो, सर इसलिए ये बैंक सर इसलिए बैंकिंग के लोगों को काउंटिंग आना चाहिए वजह ये नहीं नहीं, होती है वो अकाउंटिंग अलग है। ये वो है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जो पूरे नेटवर्क तो को इसलिए चलाएंगे। बैंकिंग को लैपटॉप कंप्यूटर का वर्क आना चाहिए बहुत बैंकिंग ज्यादा के है लोगों भाई, को बहुत ज्यादा। मतलब नहीं, ये वो लोग हैं जो बैंक का नेटवर्क चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हैक ना हो। ठीक है। हम्म जी सर ये इसका अकाउंटिंग से लेना देना नहीं, अकाउंटिंग अलग होते हैं।
जी सर। तो सर कंप्यूटर के लिए भी बैंकर्स को रिक्वायरमेंट वो होती तो ऑपरेट करना अलग होता है, उसको कंट्रोल करना, डिजाइन करना इज समथिंग एल्स। समझ आई? है। ओके। जी वो सर। प्रोफेशनल होते हैं। अब ये पढ़ो। Many modern systems can use a combination of both, offering the power of CLI advanced users and the user friendliness of GUI for general consumers. हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ये जी फीचर नहीं है, लिनक्स में है, यूनिक्स में है, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। जी सर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो GUI है सर पूरा पूरा। जीआई ना, हाँ। वो इसीलिए लेस, हाँ वो सिक्योर नहीं है, लार्ज लेवल पे उसको यूज नहीं किया जाता है। सही है? समझ जी। आ गई? यस। अब ये बताओ। हाँ ये मैंने करना है। ओके। डेटा ऑन अ चिप इज स्टोर्ड परमानेंटली एंड कैन नॉट बी डिलीटेड। अच्छा, डिलीट नहीं हो सकता कभी। तो सर ये रोम ही होगा। डेटा ऑन अ चिप इज स्टोर्ड परमानेंटली एंड कैन, हाँ ठीक है, रॉम होगा, बिल्कुल सही है। जी। नेक्स्ट है इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑल्टर और डिलीट द डेटा स्टोर्ड ऑन द चिप। रोम होगा सर क्योंकि सेव्ड है। हाँ, ये भी रॉम है, ठीक है। डेटा ऑन द चिप इज स्टोर्ड टेम्परेरी एंड कैन बी डिलीटेड बाय द यूजर। सर ये रैम होगा। ये रैम, ठीक है। ये है और ये ठीक है। डेटा डेटा इज retained even when the computer is powered down। मतलब retain मतलब। होल्ड होल्ड सेव रहेगा, डेटा सेफ रहेगा, हाँ रोम लॉस। है सर। रॉम, रोम है। ठीक है। stores data files or part operating system which is currently in use। सर रोम। रॉम स्टोर डेटा, क्या कह रहे, स्टोर? files or part नहीं, store data। हाँ देखो तुमने जब फाइल खोलोगे तो रॉम में ओपन होगी या रैम में ओपन होगी? सर अगर हाँ वो तो रैम में होगी ना सर। तो फिर रॉम का काम नहीं है ना यहाँ पे। अब तुम डेटा, अब मैं लिख, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है? हम्म, ये जो मैंने टिक किया, ये कहाँ ये जा रहा है? रैम। ये रैम में जा रहा है ना, ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा है। तो आपकी इंस्ट्रक्शन, जी डेटा और प्रोग्राम, अब ये जो मैंने पावर पॉइंट खोला हुआ है, ये भी रैम में ओपन है, क्योंकि सीपीयू रैम से एक्सेस करता है, ठीक है। रॉम का जी मतलब है सर। कि वो आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन रॉम के अंदर स्टोर है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको एडिट कर दिया तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। हम्म, यानी वो आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट है ना, उसको होल्ड करके बैठा हुआ है रॉम। रैम जी सर। होल्ड करता है करंट इंस्ट्रक्शन को, करंट डेटा को, और करंट फाइल को, या करंट एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्या जी है? सर। data is lost when power to the computer is turned off। सर ये रैम है। ये रैम, यूनिवर्सल it जो बोला contains the है। basic in, it, it contains the basic input output system used to boot up the computer when it's powered up। सर रैम है। फिर पढ़ो, वाई रैम। सर फिर रोम रोम है। रोम है सॉरी। हाँ, ये रॉम है ना। तुम्हारा सिस्टम जब भी हाँ बूट सर। हो, देखो जब तुम्हारा सिस्टम जब भी बूट होगा ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड है, यानी स्टार्टअप की इंस्ट्रक्शन। जी सर ये हाँ सिस्टम मुझे याद आ स्टार्ट, गया सर। हाँ, वो सिस्टम बाद में बताया स्टार्ट था। कैसे होगा, वो सारी इंस्ट्रक्शन रॉम के अंदर स्टोर। जी सर याद है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जी। रॉम, ठीक है। और रोम। नेक्स्ट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। सर ये रैम है और इट इज नॉन वोलेटाइल। ये रोम है। हम्म, ये क्या जी है? सर। रॉम है, रैम है? सर वोलेटाइल मतलब रैम और नॉन हाँ, वोलेटाइल मतलब ठीक रोम। है, ठीक है, तो ये रॉम हो गया, ठीक है। जी सर। चैप्टर 1 की तुम्हारी तैयारी सही है, ये देख लो सारे। जी सर मैं बस मैं वो एडवांटेज वो जो 8-9 मार्क्स वाले के क्वेश्चन है ना हाँ, वो मैं सही कर लूंगा उसको इम्प्रूव और करो। बस हो गया।
उस जी पे सर आपने देखना है कि हाउ टू जी राइट। सर इम्प्रूव कर लूँगा जी सर। अब ये जरा एक्सप्लेन करो इसको, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी क्या फर्क है? ये 4 पॉइंट का ओके। हाँ। डिस्क्राइब व्हाट इज meant by augmented reality and virtual reality. Augmented reality is a mix of real life and digital. It is like Pokemon Go and various other games, etc. While virtual reality is a reality, uh, imaginary reality like in another dimension, in another world. It is really it is मतलब सर वो मैं क्या क्या बोलूं, लाइक गेम्स की एग्जांपल दे दूं, हाँ बिल्कुल। like Rec Room and CS:GO and Gorilla Tag and multiple extra etc. जी ठीक सर। है, चेक कर लेते हैं। 4 मार्क का सर ज्यादा। हाँ, दो दो पॉइंट दे दोगे ना? जी सर चेक करना। हाँ। क्या लिखा हुआ है? Augmented AR overlays digital content into real world. जी सर ये मैंने बोला था, enhances the users ठीक है। environment। जी सर मैंने बोला था ये। जी और सर। ये बोला था आपने, और और ये? सर है। जी सर। Virtual reality creates a simulated immersive experience entirely separate from the real world। हाँ जी सर मैंने भी रियल वर्ल्ड से अलग होता है, अलग ही डिमेंशन होता ठीक है। है। जी सर। ये दो पॉइंट हो गए ना? सर्च के लिए काफी है। हाँ चलो ये कर लो फिर, काफी, चलो ठीक, ये वाला कर लो। Try the virtual could सोसाइटी इन द नियर फ्यूचर। हाँ सर ये आपने बोला था वर्ल्ड वाइड इसका। सर रियलिटी could be used in medical equipments medically, can help easily recover the injuries of patients, while virtual reality can enhance the experience of games and other future projects um, of this life। जी सर हम आप यूज भी लिखा होता सर इसके अंदर में, और हमें ये virtual reality can also help in सिमुलेशन, simulations, सिमुलेशन, हाँ ठीक है। simulators for for like lights and for future wars or like infrastructure buildings। अच्छा चलो देखो यहाँ पे। जी सर मैं देखते हैं। In the near future, augmented reality and virtual reality revolutionize various industries। हाँ सर हेल्थ केयर भी लिखा हुआ है, एजुकेशन। जी सर मैंने बोला था नहीं, एंटरटेनमेंट एंड रिमोट वर्क। और ये? They may enhance learning, improve medical procedures, offer immerse entertainment, and enable more efficient remote collaboration, reshaping social रीशेपिंग सोसाइटल norms है। and interaction। ठीक है, चलो काफी है। काफी है सर इतना। चलो ठीक, कल फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? जी सर मैं सर मेरी तैयारी ठीक है। लैपटॉप होना चाहिए मेरी तुम्हारे पास। मतलब टेस्ट तैयारी हाँ, तैयारी चैप्टर वन की बहुत अच्छी है में तुम्हारी। थी, चैप्टर हाँ, वन। चैप्टर वन की बहुत अच्छी है, आगे देखते हैं। जी सर। आगे भी इंशाल्लाह अच्छी होगी साथ साथ। जी सर ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। सर वो प्रैक्टिकल। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? जी सर मैं पूछ रहा था सर कि मैं प्रैक्टिकल आप मुझे मतलब आप प्रैक्टिकल? मेरी लाइक आप मुझे गाइड करिए, मतलब मैं करूँ और आप नहीं, मुझे गाइड करेंगे। आप परफॉर्म करेंगे, मैं आपको गाइड करूँ। आपको मैं पूरा डेटा भेजूंगा, ठीक है हाँ फिर। सर वही
हाँ आपको पेपर भेजूंगा, हाँ फाइलें सही। भेजूंगा, आप परफॉर्म करेंगे, जहाँ इशू आएगा मैं वहाँ गाइड करूँगा। सही है। मतलब सर आप गाइड ही करेंगे ना, टेक्निकली आप गाइड ही करेंगे मुझे। हाँ तो मैं देखूँ तो समझे ना, तो मैं आके आग सकता हूँ डेफिशिएंसी कहाँ पे है। आप मुझे जी सर। परफॉर्म करके दिखाएंगे ना कि आप कितनी देर में कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। फिर अगले हफ्ते में सर बट डेटाबेस। आप ऐसा नहीं करेंगे, सर आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप खुद थोड़ा समझा दे फिर मैं लाइक करूँ, या? भाई कोई मसला नहीं है, आप बहुत इजीली कर लोगे। जहाँ जहाँ इशू आएगा वहाँ मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तुम्हारी वीडियो भी बना दूंगा, तुम उसको भी देख सकते ओके हो। सर, ठीक चलिए है ना। नो वो प्रॉब्लम। तुम्हें देखो, तुम्हारा परफॉर्म करना ओके जरूरी सर। है, वो तो कोई इशू नहीं है। ओ, ठीक। जी सर। ठीक है, नमान को भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, वो जी सर। परफॉर्म करता था, मैं उसको गाइड करता था। तो इससे क्या है, लर्निंग डेवलप हो जी सर। जाती है। सर नुमान भी क्लास 2 क्लासेस लेता था आपके साथ? हाँ 2 क्लास है। सही है। ओके ठीक। सर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।